Hi guys, today we are going to talk about that how does smoking ruin you? This is a very important thing to discuss, especially for today's youth, because we all know that on this particular age we have seen a lot of dramatic changes in the youth. We have talked about that as well, isn't it? The dramatic changes in the youngsters are seen, like smoking. Some of the youngsters, even at the age of 16, 17, 18, at the very young age, when they have not said when they have not seen the entire world, they used to do the smoking, drinking, and what nonsense. So this is very important to talk about this topic, to pick up this topic and talk about it. That how smoking is injurious to health, how it will ruin your entire remaining years. Okay, we used to eat the tobacco, isn't it? The tobacco and all that stuff. That is very bad for us. Eating pan, but without the you could say calcium carbonate, it is nice. Okay, it will not lead any disaster or disorder, but by applying the calcium carbonate means that you could see the limestone. Okay, without limestone eating the pan is nice, but by applying the limestone it is also hazardous for your health. Now let's talk about that how does smoking ruins you. Very important. As I have put up these two images, these are telling you that your life is in danger. The first image told you that this smoke is not only dangerous to you but to your family as well. And this image tells you that how your healthy lungs looks like this after doing smoke, how smoking is injurious to health. So let's find out the reason that how a cigarette basically make you dull, make your life dull basically. Okay, so by this photo you could see and you could imagine, or you could take an idea, you could put an idea that by having cigarette, by drinking, or what you do by engulfing cigarette, you are not ruining yourself but to your entire generation. एंटायर जनरेशन का मतलब है कि आप ना ही खुद को नष्ट कर रहे हैं, मतलब आप अपने आने वाले जनरेशन को भी नष्ट कर रहे हैं. Okay, today you could see many of the couple, they feel infertility problems. Why it is so? This is because of this one of the major problem. Okay, you could see over here, this is a cigarette, and here you could see a portrait. What does it mean? This means a lot. It has a lot of meanings. If you want to understand, you could understand. It's saying, the cigarette is saying, this cigarette basically is saying that it is not ruining you but your entire generation, your entire family, your entire genome will destroy. Okay, your entire genome will destroy if you have this. One cigarette will give you 10,000 times of 10,000 times of the poison, of the venom of the snake, isn't it? Like a snake, okay, it is act as a snake, as a venom. So let's discuss that how a cigarette ruins your life, how a cigarette destroy or disaster your life. Let's see over here. तो cigarette पीने से, okay, we face a problem that is known as emphysema. Okay, emphysema is a disease. Basically it is a chronic disease. Okay, chronic disorder का मतलब क्या होता है? chronic का मतलब होता है जिंदगी भर के लिए, भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, isn't it? आपने 1 साल 2 साल लगातार सिगरेट पी, and if you have this disease emphysema, then you are not having any cure of it.
पूरी जिंदगी के लिए यू आर गोइंग टू die basically, not mentally but also physically, isn't it? So this is a chronic disorder. chronic का मतलब होता है कि पूरी जिंदगी के लिए परमानेंट डिसऑर्डर है. ओके, एम्फाइसेमा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर लाइक एग्जामिनेशंस. ओके, आपके एग्जामिनेशंस जिसमें बायोलॉजी आती है. ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. एम्फाइसेमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बाय स्मोकिंग होती है. अब ये स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट की नहीं हो, मेजर कॉज तो इसका सिगरेट स्मोकिंग ही होता है. बट अगर आप पॉल्यूशन वाली जगह पे रह रहे हैं वेयर यू कुड फील द स्मोक. स्मोक का मतलब होता है स्मोक मीन्स स्मोक प्लस द कंटामिनेटेड एयर. कंटामिनेटेड मतलब गंदा एयर, दोनों को मिक्स करके क्या कहते हैं, स्मोक. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पॉल्यूटेड एयर है, ओके, जो स्मोक है वो भी इसका मेन कॉज है. ओके, स्मोक का मतलब क्या होता है, द लाइक यू कुड सी द स्मोक, SMOK स्मोक, एंड you could see this fog, isn't, both are known as smoke. Collectively we used to say it smoke, isn't it? So this emphysema, it is a chronic disorder. Let's remove it because it is not for our today's topic. Let's focus on this major cause. इसका major cause क्या है भाई, cigarette smoking. जब हम we used to engulf the smoke of the cigarette, then we face this problem emphysema. अब emphysema का मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है इसमें. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वोलाई है, आई होप यू ऑल नो द एल्वोलाई, इजंट इट. मैंने आपको शायद बताई भी है एल्वोलाई क्या होती है. दिस इज एल्वोलाई, मैंने आपको बताई हुई है व्हाट इज एल्वोलाई, इजंट इट. सो जो हमारी एल्वोलाई है, जिनमें हमारे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो रियून हो जाती हैं. ओके, कैसे रियून हो जाती हैं, लेट मी टेल यू. सी this is alveoli. okay, let me read this definition. जो इसमें क्या होता है, एल्वोलाई का शेप जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, स्मोकिंग करने से हमारा जो एल्वोलाई है उसका शेप चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें एम्फाइसेमा जैसी एक खतरनाक बीमारी होती है. ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्मिनल डिजीज है, इवन यू कुड फेस द डेथ. ओके, कहते नहीं है लंग कैंसर हो गया या कुछ कैंसर हो गया. क्यों होता है ये लंग कैंसर? ड्यू टू दिस बेटा, इजंट इट, ड्यू टू दिस. नाउ लेट्स सी कि ये एम्फीसीमा है क्या. एम्फीसीमा एक एल्वोलर वॉल डिजीज़ है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक क्रोनिक डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वोलाई होती हैं उनकी बॉल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. ओके, उनकी जो बॉल है वो डैमेज हो जाती हैं. कैसे डैमेज हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया घट जाता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है. अब सरफेस एरिया क्या, याद करो कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या बताया था, जस्ट वेट. ओके, लेट मी टेक वन मोर. या तो देखिए मैंने क्या बताया था कि एल्वोलाई की शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी सी शेप होती है, इजंट इट. ऐसी शेप होती है. क्यों होती है ऐसी शेप, मैंने इसका भी रीज़न आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है. वाई एल्वोलाई आर इरेगुलर इन शेप, पूरी एक वीडियो डाली है, जल्दी से देख लीजिए. इसकी ऐसी शेप होती है, इसकी सरफेस एरिया कम बढ़ाने के लिए, इजंट इट, इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया. क्यों इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे कि हमारे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और ज़्यादा CO2 बाहर जाए, इजंट इट. इसलिए इसकी शेप ऐसी होती है. तो ये एम्फीसीमा, ये जो बीमारी है, ये क्या करती है, हमारे जो एल्वोलाई हैं जो कि इन शेप की हैं, मतलब इरेगुलर शेप की हैं, उन्हें कैसा कर देती है, राउंड कर देती है गाइस. ठीक है, समझना, जो इस शेप की एल्वोलाई है उसे कैसा कर दिया है, राउंड कर दिया. देखिए एक बार प्लीज सी. एम्फीसीमा ये बीमारी है जिसमें जो हमारी एल्वोलाई इस शेप की हैं, इस शेप की एल्वोलाई को क्या कर दिया है, जो इस शेप की एल्वोलाई है हमारी, उन्हें राउंड कर दिया. आप देख सकते हैं. ओके, उनकी जो एल्वोलाई की ब्रोंक्यूल हैं
उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, ओके, थ्रू द स्मोकिंग। उस स्मोक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है बाई कलेक्टिंग द तार। इट इज अ तार, ओके। एक कोल तार आपने सुना होगा, इजंट इट, कोल तार। तो वही होता है ये जो उसे इसकी बॉल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तार। इट इज अ चारकोल ब्लैक एग्जॉस्टिव मटेरियल जो कि आपकी लाइक एल्बोलाई की बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो एल्बोलाई है वो इस शेप की होके ऐसी हो जाती है, गोल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या हो जाता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और उस सरफेस एरिया की वजह से वो कम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाती हैं, मतलब कम CO2 को फेंक पाती हैं, कम ऑक्सीजन को ले पाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, व्हाट, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, ओके। बार बार सांस फूलना, भाग ना पाना, बार बार खांसी आना, कॉफिंग आना, इजंट इट, दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ एम्फीसिमा, इजंट इट। तो इसलिए जो सिगरेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंजीरियस होती है फॉर योर हेल्थ। यू कुड सी ओवर हेयर, इसने कैसी सी नॉर्मल ब्रोंक्यूल ऑफ एल्बोलाई को कैसा कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, एल्बोलाई इफेक्ट बाय एम्फीसिमा, ओके। नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये वर्क करती है, एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले भाई ये हेल्दी लंग है आपका, आप गए पहली बार भाई, चलिए ट्राई करके देखते हैं, इजंट इट। आपको एनर्जी आई, आपने ट्राई करके देखी, आपको टेस्ट अच्छा लगा, एक हेल्दी एल्बोलाई थी आपकी ऐसी। अब इस चीज़ की वजह से, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्टफ, इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से आपने 1 साल 2 साल लगातार आपने यू आर इनगल्फिंग इट, इजंट इट। आपने देखा पहले 1 हफ्ते में आपकी जो ब्रेंक्यूल है उनकी कंडीशन ये है, ओके। आपको क्या होने लगा, इन्फ्लेमेशन होने लगा, मतलब आपको जलन पड़ने लगी, एंड यू आर हैविंग द इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर। इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर का मतलब एकदम से आपको बहुत ज़्यादा जलन पड़ने लगती है, इजंट इट। उसके बाद आपने लगातार, फिर भी आप नहीं रुके, क्योंकि नाउ यू आर हैबिचुअल ऑफ इट, आपको एक लत लग गई है इस चीज़ की, नाउ यू आर हैबिचुअल ऑफ इट। 2 महीने बाद या 4 महीने, लेट सपोज 4 महीने बाद आपकी एल्बोलाई की कंडीशन कुछ इस तरीके से हुई। Now you are having the inflammatory chemicals dissolved alveolar septum। जो एल्बोलाई की सेप्टम है, ओके, काफ़ी ज़्यादा एल्बोलाई होती है, उनकी जो सेप्टम होती है ये वाले पार्ट, उनमें क्या होने लगा, इन्फ्लेमेशन होने लगा, जलन होने लगी, क्योंकि आप लगातार कोल तार को लगातार उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनगल्फ कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, ओके। अब भाई आई बात कुछ 6-7 साल की, 6-7 साल भी नहीं, 5 साल की बात लेते हैं, ओके। आफ्टर 5 ईयर्स के अंदर आपकी हो गई है ख़त्म, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एज पे आ चुकी है। यू आर कफिंग टू मच, यू आर अनेबल टू अटर, ओके, यू आर हैविंग अ वेरी पेन इन योर चेस्ट, ओके, इन्फ्लेमेशन बहुत हो रही है, ओके, और आपको फिर भी लत लग रही है इसे इनगल्फ करने की, ओके। और फिर आपकी जो एल्बोलाई सैक है, जो एल्बोलाई सैक हैं वो हो गए हैं बस्ट, क्या हो गए हैं, फट गए हैं, इजंट इट। और फिर कैसे हो गए हैं, गोल हो गए हैं, और इसी गोल की वजह से आपका लंग कुछ इस तरीके का दिखता है, काला काला दिखता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इनमें तार चिपक गए। दिस ब्लैक स्टफ इज नथिंग बट द तार, इसे हम क्या कहते हैं, तार। किसका तार, कार्बन का। तार का मतलब ये नहीं वायर, तार इसका नेम है, जैसे कोल तार होता है ना, बिल्कुल सेम वही। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी खतरनाक होती है, तो जाइए, अगर रोड पड़ रहा है अच्छा सा, तो वहाँ से कोलतार को लीजिए, इजंट इट। अगर कोलतार नहीं मिले तो आप क्या करिए, सिंपल एक पन्नी लीजिए और पन्नी को जला दीजिए। पन्नी को जलाने के बाद उसका जो आपको वो जब पन्नी पिघलेगी, इजंट इट, जब वो पिघल के गिरेगी नीचे ब्लैक ब्लैक, वो देख लीजिए, आपने समझिए, आपने अपनी लंग की कंडीशन देख ली। इसी तरीके से आपका लंग जो है वो कैसे गिरता है, ओके, इसी तरीके से आपका लंग जो है वो गिरता है। सो लेट मी टेल यू वन मोर इमेज, ओके। सो दिस इज द इमेज, देखिए पहले दिस पिंक कलर पार्ट, ये जो पिंक कलर का पार्ट है आपका, दिस इज योर लंग, ओके, ये आपका लंग है। और ये जो ये डार्क पिंक कलर का पार्ट है, दिस इज योर हार्ट,
ओके आपका क्या है, हार्ट। दिस इज योर हेल्दी लंग, कैसा है, बिल्कुल स्वस्थ लंग है, फ्रूट्स खाता हुआ, ग्रीन वेजीज खाता हुआ लंग है, बहुत मस्त पिंक कलर का, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब एक लंग में लाया स्मोकर का, स्मोकर मतलब जो भाई पिए जा रहा है, उसे कोई होश ही नहीं है, एक दिन में 10 सिगरेट्स को पी ली है उसने, इजंट इट। तो उसका लंग की जरा कंडीशन देखिए, सी ब्लैक कलर अगर मैं ऐसे करूँगा भी ना दिखाई भी नहीं देगा, अगर ब्लैक कलर से मैं ऐसे आउटलाइन करूँगा भी। हार्ट देखिए कहाँ कितना पिंक प्यारा सा हार्ट, कहाँ कैसा अनकलर्ड एग्जॉस्टिव हार्ट हो गया है, isn't it? देखिए दिस ब्लैक पोर्शन, दिस इज नथिंग बट द तार। जो ब्लैक पोर्शन है क्या है, तार है। तार का मतलब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, isn't it? Exhaustive gases. Okay, that's why we used to say that like don't eat this don't drink the cigarette, but eat the veggies, because the cigarette makes you exhausted, the cigarette makes you exhausted, but the veggies makes you erotic. Okay, the veggies makes you erotic, मतलब कि बहुत सारी वेजीज खाइए जो कि आपको कलरफुल रखें, आपको डिफरेंट रखें, डिफरेंट का मतलब है आपको खुश रखें, और सिगरेट मत पीजिए जो आपको एग्जॉस्ट रखे, isn't it? So this is the proverb you should keep in your mind. Okay, वैसे अभी तो आप टीनेजर्स हैं, बट अभी भी टीनेजर्स ही काफ़ी ज़्यादा धमाका कर रहे हैं, isn't it? So please, before having this, see this, isn't it? Before drinking this stuff, see this condition of your lung, ऐसा हो जाता है आपका लंग। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है, विच इज नोन एज तार। तार क्या, जो हम सड़क पे देखते हैं ना, ब्लैक ब्लैक क्या पड़ा है, ये पूरी सड़क ब्लैक कलर की किस चीज़ से होती है, क्या कलर करते हैं, नो, दे यूज टू डू द तार, कोल तार, वही सेम है, वो ही है ये। ओके, कुछ डिफरेंट नहीं है, दैट इज द सेम तार। ओके, अगर देखना है कि कैसा होता है, प्लीज बर्न अ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन को जला दीजिए, यू आर एबल टू सी द तार, इजंट इट? सो दिस एक हेल्दी एल्बोलाई जो है, दिस इज द हेल्दी एल्बोलाई, उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, सॉरी ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा लंग कैसा दिखता है गाइस, लाइक दिस, and this makes you the favorite fellow to choose for the Yamraj. Okay, so with this I hope आपको आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है वो समझ आई होगी कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग है छोटी सी, isn't it? कम से कम इतनी बड़ी होगी, okay, but it will take your rest how much years, your rest you could say 35, 45, 55, even 65 years. Okay, so don't have it, have some healthy stuff like fruits and veggies. Okay, so with this we come to an end of our today's video. If you love this today's video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon as well. Bye guys.